सुधरी है विकास दर और यहाँ पर 4.6 से 4.8%। 4.6 देखकर चौंकी मत, क्योंकि पिछली बार मुझे आपकी याददाश्त पे भरोसा है 4.4% पहली तिमाही में विकास दर बताई गई थी, लेकिन उस आंकड़े को सुधारा गया है, बढ़ाकर 4.6 कर दिया गया है और उसके बनस्पत दूसरी तिमाही में 4.8% की विकास दर सामने आई है। अब इस सुधार का नतीजा क्या है और इसके चलते हम किस तरह की बातें आगे समझ सकते हैं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं एचडीएफसी बैंक के वाइस चेयरमैन के मिस्त्री। मिस्टर मिस्त्री, वेलकम टू द शो। फर्स्ट ऑफ ऑल आपसे समझना चाहेंगे कि क्या ये माना जाए कुछ इम्प्रूवमेंट हुआ है ग्रोथ रेट में? बेशक हेडलाइन नंबर्स जो हैं वो तो बता रही हैं, लेकिन अगर आप इसके इंटरनल्स देखें, डू यू फील दैट इकोनॉमी इज रियली इम्प्रूविंग? If you see the growth number जो आए हैं 4.8%, it's better than the market expected. अभी आप एनालाइज करने को जाएं कि why the growth number has picked up, it is largely because of agriculture. Agricultural growth is up quite significantly. Manufacturing is marginally up. Services is marginally lower. So largely जो agriculture जो अच्छी we had a good monsoon. वो monsoon की जो effect बोलते हैं, that monsoon effect is there, and because of that the GDP numbers are looking good. My view is that if you get into January, as the harvest season picks up, food prices are likely to go much higher, which will bring down inflation numbers. And I feel that by April, May, June, RBI will have some flexibility to lower interest rates. Right. अब यहाँ पे सवाल है कि फर्स्ट क्वार्टर आपके सामने जो नंबर है that is 4.6, then second quarter is 4.8. So a basic question is, will the second half of the financial year will it be somewhat better? क्या दूसरी छमाही थोड़ी बेहतर होगी? Second half has to be better than the first half because of the agriculture, because of the rural economy, which is doing much better now than what it did in the first half, largely driven by the fact that we had good monsoons and therefore agricultural production should be good. So therefore, second half has to be better than the first half. So the 4.4 number that we saw, which is now revised to 4.6, but that is probably the lowest number we will see in a long, long time, hopefully. Hopefully, definitely it would be a better hope. लेकिन अब सवाल ये है कि पूरे साल के लिए, for the whole fiscal year FY 13-14, what would be your estimate for the GDP number? My expectation is 4.8 to 5. Right. So 4.7 to 5. You can say 4.7 to 5 is the GDP. 4.7 to 4.9, 4.7 to 5, somewhere in that range will be the GDP number this year. तो एक तरह से ये माना जाए, so can we conclude that the worst is over? We can say that the worst is, at least for the time being, over because of the rural economy, only largely because of the rural economy. But the most important thing we have to look for is signs of sentiment changing and the investment cycle picking up. So investment cycle to pick up hua hai. If the investment cycle starts picking up, people start investing money again in creation of new facilities, creation of new plant and machinery, creation of new factories. That will create jobs, that will increase consumption, and that will have a huge impact in terms of pushing economic growth. So jo investment cycle jo pick up hona hai, that is still not, we are not seeing any significant signs of that happening. One last question. हम लोग इलेक्शन पीरियड के अंदर अब जा रहे हैं, इलेक्शन करीब आ रहे हैं लोकसभा के, तो उससे पहले क्या इन्वेस्टमेंट साइकिल में इम्प्रूवमेंट शुरू हो पाएगी, या फिर आपको लगता है कि जो भी अब इम्प्रूवमेंट इन्वेस्टमेंट साइकिल में पर्टिकुलरली होनी है, दैट विल हैपन ओनली आफ्टर द इलेक्शन रिजल्ट्स आर आउट? My view is that the investment cycle, a lot of people are waiting for elections, getting some clarity on what will happen after the elections, and only then will they be willing to commit large amounts of investments into India. But because of the good monsoons, the rural economy will pick up, and probably the third and fourth quarter of the financial year could see that the GDP numbers could inch up a little further because of the rural economy, because of the good monsoons, and because of the good, hopefully the good food produce we'll have after the harvest season is over. जी मिस्टर मिस्त्री, बहुत बहुत शुक्रिया अपनी राय हमारे दर्शकों के सामने रखने के लिए। और हमारे साथ अब सिद्धार्थ शंकर भी जुड़े हैं, एडवाइजर कासा ग्रुप के, जिनसे हम इसी मसले पर बात करेंगे। सिद्धार्थ, स्वागत है कार्यक्रम में आपका। जिस तरह से अभी के मिस्त्री बता रहे थे कि शायद पूरे साल के लिए जो हेडलाइन नंबर मिलेगा वो शायद कुछ 4.8-5% के आसपास तक रह सकता है, आपका अपना आकलन क्या है?
मैं भी समझता हूँ कि 4.85 के बीच में ही रहना चाहिए, बिकॉज देखिए जो आज नंबर आया है 4.8% का, ऐसा लगता है कि थर्ड क्वार्टर में शायद ये ग्रोथ रेट ना मेंटेन हो पाए, 4.8 का थोड़ा सा नीचे आ सकता है, बिकॉज मैं समझता हूँ अभी भी सर्विस सेक्टर जो है गोइंग फॉरवर्ड थर्ड क्वार्टर में थोड़ा सा डिक्लाइन शो करेगा एज कम्पेयर टू द सेकेंड क्वार्टर। एग्रीकल्चर में भी शायद उतनी ग्रोथ ना मिल पाए जितनी हमें पहले दिखी है, तो मैं समझता हूँ अराउंड 4.6 4.7 की रेंज में रहना चाहिए थर्ड क्वार्टर। अगर सब चीजें बाकी ठीक रही तो हो सकता है कि आपका फोर्थ क्वार्टर के नंबर्स बेटर आ जाएं। यहाँ पर तो इस बार के जो नंबर्स हैं उसमें सिद्धार्थ एक समस्या मुझे दिख रही है कि एग्रीकल्चर ने जो थोड़ा अच्छे ढंग से चौंकाया है, पॉजिटिवली सरप्राइज किया है, उसकी वजह से आपके ये हेडलाइन नंबर्स इतने बेहतर दिख रहे हैं, वरना मैन्युफैक्चरिंग ने कोई बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट नहीं दिखाई है। अगर आप सर्विस सेक्टर की बात करें जो कि जीडीपी का अब एक बहुत बड़ा हिस्सा है, वहाँ पे हमें एक लगातार स्लो डाउन दिख रहा है, लगातार उसके नंबर्स कम होते जा रहे हैं, वो अपने आप में एक बड़ी चिंता है। राइट, इन्हीं नंबर्स को मद्देनजर रखते हुए मेरे को ऐसा लगता है कि जो थर्ड क्वार्टर के नंबर्स आएंगे वो इससे थोड़ा पुअर ही होंगे, बिकॉज देखिए खाली एग्रीकल्चर हमारे जीडीपी को ड्राइव नहीं कर सकती है, मैन्युफैक्चरिंग को ड्राइव करना है, माइनिंग को ड्राइव करना है, सर्विसेज को ड्राइव करना है, और वो आप देखेंगे कि थर्ड क्वार्टर में भी डिक्लाइनिंग साइड पे ही रहे हैं। तो उस कारण से इसलिए मेरे को लगता है कि थर्ड क्वार्टर के नंबर्स भी थोड़ा सा वीकर ही रहेंगे 4.8 से। जी उम्मीद बनाई जा सकती है फोर्थ क्वार्टर में अगर कुछ हमें अपस्विंग मिला तो हम देखेंगे कि ये 4.8 की रेंज में जाके पूरे साल का जीडीपी नंबर आएगा। जी शुक्रिया सिद्धार्थ इस पूरी बातचीत के लिए, जानकारी के लिए, और इसी मसले पर एक और नजरिया देखते हैं स्वागत भट्टाचार्य का एक्सिस बैंक के। अच्छा है, हमें बहुत मतलब जितने भी बेसिस पॉइंट्स इंप्रूवमेंट देखने को मिलती है, इट्स ऑल द बेटर। तो अब बाजार की बात देख लेते हैं, क्या नजरिए बन रहे हैं अगले दिन के लिए, यानी अगले नए हफ्ते में किस तरह की शुरुआत रहेगी। ब्रजेश सिंह, अल्पेश फुरिया और हमारे आज के मेहमान प्रदीप सुरेका, तीनों की राय यह है कि अगला दिन बाजार के लिए बेहतर रहेगा। अगले 2 हफ्तों को लेकर के हालांकि बहुत आश्वस्त नहीं है, तीनों ने ही कहा है कि बाजार में उतार चढ़ाव रहेगा। जो अलग अलग दायरे हमारे सामने हैं, 6020 से 6440 तक, 6130 से 6400 तक और 5950 से 6300 तक, इस तरह के आकलन सामने हैं। लेकिन कुल मिलाकर के अगला दिन जो है, सोमवार का जो दिन है, उसके बारे में आश्वस्त हैं कि वो बेहतर क्षेत्र रहेगा और कोई खास ऐसा क्षेत्र नहीं है जहां पर अगले दिन कमजोरी रहेगी। यानी जो हमें शुक्रवार का उत्साह दिखा है वो अगले दिन भी टिका रह सकता है। प्रदीप हमारे साथ हैं इस वक्त, स्वागत है कार्यक्रम में आपका। प्रदीप जी, क्या ये माना जाए कि जो एक छोटी अवधि की कमजोरी दिख रही थी, खासतौर पे मुहूर्त कारोबार के बाद से बाजार थोड़ा एक ढलान पे था, वो ढलान अब कहीं पे बाजार एक सहारा ले रहा है और उस ढलान से उबर रहा है? जरूर, ये शॉर्ट टर्म के लिए जरूर माना जा सकता है। हमने राजीव जी पिछले हफ्ते भी यही बात की थी कि जो 5972 का डबल बॉटम एक बना था, आपने और हमने जो डिस्कस किया था, उसके बाद भी मैं थोड़ा अस्वस्थ था कि जब तक 5935 नहीं टूटता है तब तक कोई नए सिरे से कमजोरी नहीं आएगी। और आप मंडे को देखिए, बाजार गैप अप हुआ, उसके बाद तो बाजार में ये जो 5972 का जो फोकस था वो कहीं भी 50 पॉइंट और ऊपर शिफ्ट होके 6020 6030 पे शिफ्ट हो गया और पूरे हफ्ते में उसके नीचे नहीं आ सके। आज जिस तरीके का चार्ट सेटअप डेली चार्ट और वीकली चार्ट पे बना है, ये कहीं भी एक बार इशारा कर रहा है कि अगर हम 6220 को, बहुत ज्यादा उम्मीद जो चार्ट सेटअप से भी है और जो जीडीपी के फिगर भी है, बाजार थोड़ा सा इसके ऊपर में एक्शन में आएगा, तो अगर हम 6220 के ऊपर निकल पाते हैं तो फिर एक बहुत बड़ी संभावना वापस बन जाएगी कि हम 6300 की तरफ चले जाएंगे। वहां हम टिकेंगे कितना या वहां से स्लिप कैसे करेंगे, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। चलिए, आपने मेरे अगले सवाल का जवाब पहले ही दे दिया। मैं पूछने वाला था कि 6212 जो कि पिछला स्विंग हाई दिख रहा है वो पार होगा तो क्या होगा, वो आपने पहले ही बता दिया। इसलिए अब मैं यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक ले सकता हूँ। लौटेंगे तो फिर बात होगी चुनिंदा शेयरों की। लौटते हैं बस कुछ ही पलों में।